Good morning everyone. From today onwards we are going to discuss with the practicals of bioinformatics. We have seen theory regarding databases, so how we can deal with the practical solutions of the bioinformatics that we will see live through the website. Okay. In that first step of the practical is sequence retrieval for nucleic acid and protein. We have seen that about different databases in our lecture. Databases are the nothing but material. It is a system where you can store your data, you can edit your data, and you can retrieve your data. Retrieving means whenever you need the data, you can collect that data, right, from those databases. That is called as a retrieval. Now in this first exercise, we are going to retrieve the data for protein as well as from nucleic acid from gene bank. From gene bank that is governed by NCBI, we are going to retrieve the data. In our theory session, we have discussed in detail regarding this gene bank. Now let's have a short revision of that. First of all, gene bank is a sequence database where you can find the sequences of nucleotide as well as of protein. It is open access. Open access means anyone can use this data, retrieve this data. It is annotated means marked collection of all publicly available nucleotide sequence. अभी यहाँ पे ये डेटा आता कहाँ से है, तो अलग अलग रिसर्चर्स जो अपने डेटा कोई भी कहीं पे भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का से एग्जांपल उन्होंने आइसोलेशन किया, उसका जीन सीक्वेंसिंग कराया, और अगर वो जीन सीक्वेंसिंग को वो सबमिट करेंगे यहाँ पे NCBI में थ्रू एंट्रेस जीनोम सिस्टम, तो वो जो डेटा है आफ्टर वेरिफिकेशन विल बी अवेलेबल फॉर एनीवन एंड दे कैन रिट्राइव इट थ्रू सम कीवर्ड्स, थ्रू सम एसेशन नंबर और थ्रू द सबमिटर्स प्रोफाइल. ओके. Who governs this NCBI? NCBI is governed. Who governs this gene bank? Gene bank is governed by National Center for Biotechnological Information, that is NCBI, which is a US based organization, and they have a huge collection of data of nucleotide and protein. Let's see how we can retrieve this data. Okay, these are the steps. First, you need to go with this website, that is www.ncbi.nlm.nih.gov, right? You should remember this website. If you can't, you just simply write in your Google NCBI, right? Preferable is you should remember this website. Okay, once you write this, a page will appear. In this page there will be a search box. We will see that practically, but just have a quick look on what are the steps. On search box, you may in step 2 you need to add certain keywords of nucleotide, protein or accession number, either keywords or accession number, whatever you want to retrieve, you need to add that. Okay. Now third step, which is very important step in retrieval of the nucleotides or protein, that you need to select appropriate database. There are so many databases in this gene bank, different categories, right? For what you are from where you want to retrieve your data, that you need to select. In this case, we are going to retrieve the data for nucleotide and protein, so you need to select their nucleotide if you are retrieving the nucleotide data, and you need to select protein if you are retrieving the protein data. Many students get confused. काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि न्यूक्लियोटाइड का डेटा रिट्राइव करना है, एंड दे हैव क्लिक ऑल डेटाबेस, तो वहां पे बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे. अगर आपको बोला है कि दिस आर योर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो सिलेक्ट न्यूक्लियोटाइड देयर, और प्रोटीन सीक्वेंस बोला है तो वहां पे प्रोटीन सीक्वेंस आपको क्लिक करना है. Then there is on pressing the search button, result will appear. You choose the first, और जो भी appropriate result आएगा वो select करो, उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो a page will appear, एंड वहां से आपको आपका जो डेटा है वो FASTA फॉर्मेट में डाउनलोड करना है. कैसे FASTA फॉर्मेट में सीक्वेंस लेंगे, तो वहां पे एक तो राइट साइड पे साइन टू का बटन होगा, उस पर क्लिक करना है.
फिर क्लिक ऑन द फाइल, फाइल करके जहां पे लिखा होगा उस पर क्लिक करना है, उसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करना है एंड देन सिलेक्ट द फास्टा फॉर्मेट और डाउनलोड पे बटन क्लिक करके आप वो डाउनलोड कर सकते हो। फिर इट इज वेरी इजी, राइट। दिस इज जस्ट अ सीक्वेंस रिट्राइवल कि भाई एनसीबीआई की वेबसाइट पे जाके मैं सीक्वेंस को कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ, वो हम सीख रहे हैं। फॉर प्रैक्टिस लेट्स हैव वन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए 2-3 सीक्वेंस रखी है, आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। हम पहला वाला लेते हैं, दैट इज NM_005-295.4। यहाँ पे जितने भी वर्ड है वो प्रॉपरली आपको यूज करने हैं, अदरवाइज कुछ भी एरर आ सकता है अगर आपने उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया है तो। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे करना है इसको। Okay, say example, I am going with this NCBI website. This is ncbi.nlm.onis.gov जो मैंने आपको लिखवाया है वो। ठीक है, देखो यहाँ पे सेकंड क्या था, ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे आपको आपकी क्वेरी सर्च करनी है। ये मैंने क्वेरी का एसेशन नंबर मुझे दिया गया था वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। देखो दिस वाज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ओपन द जीन बैंक वेबसाइट, हमने ओपन करी। सेकेंड स्टेप सर्च कीवर्ड्स ऐड करो या फिर एसेशन नंबर ऐड करो। हम एसेशन नंबर ऐड कर रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय एसेशन नंबर? इट इज यूनिक नंबर विच इज गिवन टू एनी सबमिशन। ओके, उसके बाद क्या है थर्ड स्टेप, सिलेक्ट एप्रोप्रिएट डेटाबेस एज न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन। तो आई एम सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट डेटाबेस। देखो यहाँ पे क्या है, ऑल डेटाबेस है, तो ऑल डेटाबेस में नहीं जाके ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, तो आई विल जस्ट सिलेक्ट न्यूक्लियोटाइड हियर। आप देख सकते हो बहुत सारे ऑल डेटाबेस में बहुत सारे डेटाबेस है, ये अलग अलग टाइप के डेटाबेस है। हमको न्यूक्लियोटाइड चाहिए इसलिए हमने न्यूक्लियोटाइड के ऊपर क्लिक किया। देन वी नीड टू क्लिक ऑन द व्हाट इज द फोर्थ स्टेप। द फोर्थ स्टेप इज टू प्रेस द सर्च बटन। सो वी आर जस्ट प्रेसिंग द सर्च बटन। वी नीड टू वेट फॉर फ्यू मोमेंट। ये आ गया कि एसेशन नंबर के हिसाब से ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है इट इज अ होमो सेपियंस मेलेनिन कॉन्सेंट्रेटिंग हार्मोन रिसेप्टर दैट इज MCRHR1 मैसेंजर। ओके, ये पूरी उसकी डिटेल है। डिटेल में एसेशन नंबर क्या है, कीवर्ड्स कौन से है, रेफरेंस क्या है, कौन सा ऑथर है, कौन से रिसर्च पेपर के अंदर ये सीक्वेंस सबमिट हुई, ये सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। यू जस्ट गो थ्रू दिस। अगर आप इसको नीचे जाओगे तो यहाँ पे ये पूरी सीक्वेंस अवेलेबल है। यू कैन कॉपी दिस सीक्वेंस और वी कैन डाउनलोड इट। यहाँ पे ना सारी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल होती है। प्राइमरी आइडेंटिफायर कौन सी है, सेकेंडरी आइडेंटिफायर कौन से है, न्यूक्लियोटाइड का सोर्स क्या है, लोकेशन कहाँ से उसको आइसोलेट किया, कितनी लंबी सीक्वेंस है। देखो ये 22115 दिख रहा है, तो इतने लंबे न्यूक्लियोटाइड की जो है ये सीक्वेंस है। ठीक है, ये एक कब सबमिट हुई है, ये सब चीजें आपको शांति से देख लेनी है। अभी हम डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड कौन से फॉर्मेट में करना है, फास्टा फॉर्मेट में। फास्टा फॉर्मेट क्या होता है वो भी हम देखते हैं। उसके पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट क्या है, क्लिक ऑन टू सेंड टू विच इज एट द राइट साइड। ये रहा राइट साइड के ऊपर सेंड टू बटन, उसके ऊपर क्लिक किया। फिर क्या है, चूज फाइल। तो यहाँ पे फाइल के ऊपर कुछ क्लिक नहीं किया है तो मैं फाइल के ऊपर चूज करूंगा, हो गया। देन क्लिक ऑन द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है, तो अलग अलग फॉर्मेट है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट के अंदर जाके फास्टा पे सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन द क्रिएट फाइल। जैसे ही क्रिएट फाइल पे ऊपर आप क्लिक करोगे, एक नोट पैड में वर्ड फाइल जो है वो खुल जाएगी। उसके ऊपर शो इन फोल्डर करके क्लिक करो, देन सीक्वेंस आ गई। सीक्वेंस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको ये यहाँ पे दिख रही है सीक्वेंस। देखो ये मैसेंजर RNA की सीक्वेंस है, GTTE, ये सब न्यूक्लियोटाइड है जो ये सीक्वेंस में अरेंज है। अभी मैंने क्या बोला कि इट शुड बी इन द फास्टा फॉर्मेट, तो कोई भी सीक्वेंस फास्टा फॉर्मेट में है ऐसा कैसे पता चलेगा? अगर किसी भी सीक्वेंस के आगे ये जो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है, अगर ग्रेटर देन का सिंबल है तो वो सीक्वेंस जो है वो फास्टा फॉर्मेट में है ऐसा माना जाएगा। दिस इज हाउ इट इज सिंपल। वी हैव डाउनलोडेड द सीक्वेंस by just inserting the keywords or accession number
ओके, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड के लिए। अभी हम प्रोटीन के बारे में भी देख लें। ये स्टेप याद रखना। हाँ, टेक स्टेप 1 क्या है, सेंड टू पे क्लिक करना। स्टेप 2 क्या है, फाइल पे, देन फॉर्मेट के ऊपर फास्टा सिलेक्ट करना है और उसको हमको डाउनलोड करना है। नाउ लेट्स सी, लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल ऑफ अ प्रोटीन। ये प्रोटीन सीक्वेंस है, क्या है, NP_001297042। ये सीक्वेंस मैंने दे। स्टेप 1 by 1 जाएंगे, हम कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। ncbi.nlm.nih.gov क्लिक हुआ। यहाँ पे सेकेंड स्टेप मैंने जो कोड है वो डाल दिया, एसेशन नंबर, जिसको कीवर्ड्स भी कहते हैं, इसको क्वेरी भी बोल सकते हो आप। ऑल डेटाबेस सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे ये प्रोटीन का सीक्वेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटीन सर्च करेंगे। ये रहा प्रोटीन। ये होने के बाद वी नीड टू क्लिक ऑन सर्च बटन। सर्च बटन क्लिक करोगे तो मेलेनिन कॉन्सेंट्रेटिंग हार्मोन रिसेप्टर 1 जीनोपस ट्रॉपिकालिस आ गया। ठीक है, अभी इसमें हमको फास्टा फॉर्मेट डाउनलोड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेंड टू के ऊपर क्लिक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। सेकंड पॉइंट हो गया, फॉर्मेट में जाके फास्टा के ऊपर क्लिक करेंगे। थर्ड पॉइंट हो गया, देन क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर देंगे। जैसे ही आप डाउनलोड कर दोगे, एक नोटपैड ओपन हो जाएगा। फाइल डाउनलोड होके नोटपैड आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको आपका फाइल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे MPJEVGTA लिखा है, दिस आर द कोड्स फॉर अमीनो एसिड। हमेशा याद रखना कि अमीनो एसिड की प्रोटीन की सीक्वेंस है वो कैसे पता चलेगा, ये कोड पे से NLMN वो सब लिखा होगा। अमीनो एसिड 21 अमीनो एसिड का 21 अलग अलग कोड है। और अगर वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस हो, मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस को हो, तो इट विल बी ऑफ ATGC या फिर AUGC या ऐसा कुछ जो है वो न्यूक्लियोटाइड के कोडिंग्स होंगे। यहाँ पे अमीनो एसिड के कोडिंग्स होंगे। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि व्हाट एक्जेक्टली इज द प्रोसीजर फॉर डाउनलोडिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड and sequence of protein. I should say retrieving the sequence of protein and sequence of nucleotide. Okay? ये दूसरे भी कुछ है एसेशन नंबर, वो ऐड करके भी आप ट्राई जो है वो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। If you like the video, please like, share and subscribe to channel. Thank you.